Before starting today's session, I would like to tell you I'm not against anyone. Elvish, Yadav, yeah. And in India's criminal justice system, everyone is innocent until proven guilty. Our concern is because of this issue, all the UPSC aspirant has to study few important topics. The topics which has raised because of this issues, हमारे UPSC aspirants के लिए environment related कुछ नए topics सामने आए हैं, and everyone has to read those topics. So that is our concern. I am not against कौन right है कौन गलत है. We are not going to fall into it, and I would consider कि everyone is innocent until proven guilty. तो and everyone has their opinion. तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं am this. Our concern is what has happened is because of these issues, our UPSC aspirants have to study have to study few important things जो न्यूज में नहीं थे, and UPSC is known to ask such questions. तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चलेगा. So if you see news article with respect to this case, you will realize there were few important snakes which were in news. And snakes, not just the snakes which are mentioned here, that cobra, python, तो ये सारे snakes सिर्फ इस टॉपिक रिलेटेड न्यूज में नहीं थे. There were certain other news articles because of which these topics are, ठीक है, these topics were in news. So snake, this king cobra was in news. Double-headed snake, which is also known as red sand boa, that was also in news. Python, reticular python was in news. So वो topics हम cover करने वाले. We are not going to discuss that case. Our concern is कि we are going to study these topics in a holistic way, and how we are going to interlink that topic is important. चलेगा. I want every UPSC aspirant who is part of target UPSC ensure कीजिए कि ये सेशन अगर आप एंड तक देखोगे तो you'll learn so many new things through this important session. So basically what मतलब the point of contention was snake venom was in news. So there was an allegation कि snake venom use किया गया है. तो snake venom related कुछ basic aspect पता चाहिए, क्योंकि ये एक common मतलब if you go in forest, तो because of snake venom many people die, and snake venom you should know as an what do you say UPSC aspirant, as a knowledgeable UPSC aspirant, you should know about this topic. ठीक है, तो snake venom का negative aspect सबको पता है कि जो snake venom है, some of the snake का venom is hemotoxic. hemotoxic मतलब blood cells को affect करता है. some are neurotoxics, जैसे हमारा king cobra is neurotoxic. cytotoxic कुछ toxins होते हैं. myotoxic मतलब muscle को affect करते हैं, and cardiotoxic that is heart को affect करता है. तो snake venom अलग-अलग तरीके से काम करता है, and there are certain positive benefits out of snake venom. The MCQs can be the snake venom is always harmful, but there are certain positive impact also, क्योंकि अगर आपको positive aspect नहीं पता है तो definitely you will go wrong, क्योंकि snake venom is being extracted globally and is being stored and is used for various purposes. So one of the purposes snake is to develop anti-venom. Anti-venom मतलब क्या? It's like an antibody to the venom. तो anti-venom भी हम किससे generate कर रहे हैं? Snake venom से generate कर रहे हैं. Next is, अगर हम ये बात करेंगे कि what are the other benefits or what are the other medicines which are produced for which diseases from snake venom, तो इसमें हम देखेंगे blood disorders के लिए, coagulation disorders के लिए, what do you say, we have we use snake venom toxin. snake venom का toxin use करते हैं hypertension के लिए भी, heart attacks में, chronic pain, cancers में भी what we are using. There has been research and at few places they are using. So snake venom is also used as a medication. तो ये एक important aspect पता चाहिए. Next is, जब हम snake की बात करते हैं तो snakes भी पता चाहिए कि snakes are known as farmers' friends. So we cannot see snakes from a negative aspect. There's certain positive aspect with respect to snake. And क्योंकि MCQ इसी format में आ रहा है UPSC is trying to link it with static syllabus, basics में जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो जब तक आप current and static link नहीं करोगे, current के news को static के साथ link नहीं करोगे, तो वो इनकम्प्लीट नॉलेज है. आपने देखा स्नेक आपने देखा कि यार ये 3 स्नेक का आयुसीन स्टेटस डिक्लेयर हो गया, नहीं, आपको स्नेक के बेसिक्स तक जाना चाहिए, बिकॉज स्नेक्स has a very important role in our ecosystem. तो एक important है, they are both predators and prey, they form an important part of our food web, they maintain the balance of the ecosystem, एक important है, they are environmental health indicators, तो इस perspective से important है, they prey on rats and rodents, so because of which our soil health is maintained, they are known as farmers friend. जो भी rodent है उसको खा देता है,
रैट्स को खाता है, पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, स्नेक वेनम तो मैंने बता दिया कि क्या क्या उसका रोल है, एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। तो जब भी आप कोई मेंस पर्सपेक्टिव से लिखोगे तो आपको ये होलिस्टिक एस्पेक्ट जानना जरूरी है। यू कैन नॉट हैव अ नैरो एस्पेक्ट कि सिर्फ हमने स्नेक पढ़ लिया फ्रॉम अ नेगेटिव एस्पेक्ट, लेकिन उसके बेसिक्स में कि यार स्नेक का क्या रोल है, ये जब तक रिसर्च नहीं करोगे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है। एमसीक्यू इसी वजह से सॉल्व नहीं हो रहा है कि आप नैरो एस्पेक्ट से देख रहे हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कमिंग बैक टू विच ऑल स्नेक्स आर इन न्यूज, तो किंग कोबरा न्यूज में है, IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, अब मतलब शेड्यूल 1 में होता है, आता है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट स्नेक, व्हाट यू से, स्नेक बोलते हैं तो, एंड द टॉक्सिन इज, व्हाट यू से, द टॉक्सिन इज न्यूरोटॉक्सिन, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूरोटॉक्सिन है, एंड इट इज वन ऑफ द ओनली स्नेक्स विच एक्सक्लूसिवली, मतलब विच प्रेज ऑन अदर स्नेक्स, तो ये दूसरे स्नेक्स को भी खाता है, एंड दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर नेस्ट जहां दे ले एग्स, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज नॉट पोटेंट नहीं है, लेकिन क्वांटिटी बहुत रिलीज होती है, दैट्स व्हाई पीपल डाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्नेक पता चाहिए। IUCN स्टेटस हमने देखा, इसका वल्नरेबल स्टेटस है, तो यू शुड नो दिस, ठीक है। एंड मेजरली वेयर डू यू फाइंड स्नेक्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलते हैं, प्लेन्स इंडिया में, चाइना में, सदर्न चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में, यू विल फाइंड व्हाट यू से, यू विल फाइंड दिस स्नेक्स अक्रॉस हियर, एंड दे हैव बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। व्हाई वी आर सीइंग मोर ऑफ सच केसेस इज डिफॉरेस्टेशन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एक्सोटिक पेट्स हो गया, डायरेक्ट किलिंग बाय ह्यूमंस हो गया, इस वजह से इनका क्या हो रहा है कि नंबर्स कम हो रहा है धीरे धीरे, एक्सप्लॉयटेशन फॉर देयर स्किन्स, तो ये सारे रीजन है व्हाई व्हाट वी आर सीइंग इज देयर नंबर इज डिक्रीजिंग और दे आर फेसिंग कंजर्वेशन इश्यूज, तो ये हमने देखा। नेक्स्ट कम पाइथन वाज आल्सो इन न्यूज, तो पाइथन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब स्पीशीज ऑफ पाइथन्स व्हिच आर फाउंड, इसमें कौन सा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सी कौन से इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, इंडियन रॉक पाइथन हो गया, बर्मीज पाइथन एंड रेटिकुलेटेड पाइथन, ये 3 पाइथन के। पाइथन इज बेसिकली अजगर, यू व्हाट यू नो, एंड दे आर नॉन वेनमस, most of, मतलब all the pythons are non venomous, how they kill is by constriction, ये एक इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए। अगेन आई हैव टोल्ड यू देयर आर फ्यू अदर आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू पाइथन, रेटिकुलेटेड पाइथन वाज आल्सो इन न्यूज, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो ये उसका इमेज है which you can see, reticulated python का, and to give you details about it, it is one of the longest snakes है, it is 3rd heaviest है, तो उस पर्सपेक्टिव से पता चाहिए। लीस्ट कंसर्न है IUCN स्टेटस, एंड शेड्यूल 1 में मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर इन शेड्यूल 1, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, बिकॉज यू हैव अ हायर पेनल्टी इफ यू आर इन्वॉल्व इन एनी क्राइम्स विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल 1 एनिमल्स। दीज रेटिकुलेटेड पाइथन्स आर नॉन वेनमस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग बर्मीज पाइथन स्प्रेड वेस्टवर्ड इन इंडिया, तो बर्मीज पाइथन इज ऑल्सो इन न्यूज, तो ये May 2023 का है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज थीम बेस्ड करंट अफेयर्स व्हिच इज हेल्पफुल, हम यही करंट हमारे टारगेट 140 प्लस बैच में यही करते हैं, थीम बेस्ड करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज यू विल नो द सीक्वेंस ऑफ events also related to one topic. Burmese python is largest snake species है, 20 feet long है, तो and as I've told you 3rd heaviest होते हैं, vulnerable है, IUCN status vulnerable है, किंग कोबरा भी vulnerable था, ये भी vulnerable, शेड्यूल 1 में आता है, तो एक इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज बायो इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट वी हैव सीन इज वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द बर्मीज पाइथन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन रॉक पाइथन इज ऑल्सो, एज आई हैव टोल्ड यू 3 टाइप्स ऑफ पाइथन्स मिलते हैं, रेटिकुलेटेड, बर्मीज एंड इंडियन रॉक पाइथन, इसका भी IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, तो एक इंपॉर्टेंट नियर थ्रेटेंड है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में मिलता है, शेड्यूल 1 में आता है, ग्रासलैंड, स्वैम्प्स, मार्शेस, here you will find Indian python, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको इमेजेस भी I have tried to show through this important, ठीक है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू, 2-headed snake is also in use. If you've seen red sand boa, this is also known, this snake is known as 2-headed because इसका हेड और टेल सिमिलर थिक है, इसलिए इसको 2-headed snake बोलते हैं। रेड सैंड बोआ इसका नाम है, एंड व्हाट डू यू से इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट what do you say trafficked animal, one of the highest है, सबसे हाईएस्ट तो इंडियन पैंगोलिन्स है, लेकिन उसके बाद रेड सैंड बोआ के भी वी हैव सीज सो मेनी रेड सैंड बोआ, एंड इट इज यूज्ड फॉर ब्लैक मैजिक, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी चाइनीज रीजन में यू विल देयर इज मोर डिमांड ऑफ दिस रेड सैंड बोआ। इट इज ऑल्सो नोन एज डबल हेडेड स्नेक बिकॉज इसका कुछ डबल हेडेड स्नेक भी होता है, बट दिस इज, इसका हेड एंड टेल उतना ही थिक है, तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, इसलिए इसको रेड हेडेड स्नेक बोलते हैं, ठीक है। 2-headed स्नेक एज आई हैव टोल्ड यू, इसको नॉन वेनमस है, अगेन इट इज नॉन वेनमस है, एंड इसका लेंथ
अगर हम इसका लेंथ देखें तो 75 सेंटीमीटर्स के आसपास इसका लेंथ होता है। नॉक्टर्नल होता है, एक इंपॉर्टेंट है। ओवीपेरस है, ठीक है, ओवीवीवीपेरस है, लिविंग मतलब दे गिव बर्थ टू लाइफ यंग वंस को दे बर्थ देते हैं डायरेक्टली। एग्स आर इन द बॉडी इटसेल्फ एंड दे आर प्राइमरली फीड ऑन rodent, lizards and even other snakes, तो ये भी अदर स्नेक्स पर फीड करते हैं। नेक्स्ट इज IUCN स्टेटस नियर थ्रेटन्ड है, शेड्यूल 1 में आता है एज वी हैव ऑलरेडी सीन। रेड सैंड बोआ मैजिकल पर्पस के लिए एंड मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। रेडिश थिक रेडिश कलर है, इफ यू कैन सी फ्रॉम हियर, एंड मेजरली दे आर फाउंड इन एरिड रीजन्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में, एरिड रीजन में यू विल फाइंड दिस, ठीक है, ठीक है, you will find this important snake. Rat snake was in use with respect to the case, and rat snake को धामन भी बोलते हैं। least concern IUCN status है, non venomous है, again non venomous, ठीक है। तो why there in that case we have few venomous case and venomous snakes and few non venomous snakes, तो एक important है। Next is, as we have seen that the crimes against him, the provisions are use of Wildlife Protection Act. तो Wildlife Protection Act एक important act है। We have seen recently there was amendment with respect to that. So Wildlife Protection Act is also important, and it is an important act from environment perspective, prelims perspective से बहुत important है। And if you see not just that, but because of other reason also there is amendment to Wildlife Protection Act which happened. Because of that also there are 4 to 5 articles which are directly in use with respect to Wildlife Protection Act. So basically it is one of the comprehensive laws in India for protection of flora and fauna and their habitat also. So it conserves not just flora and fauna but also protects their habitat. It controls the trade of animals. So trade भी control करता है. It controls possession, it controls trade, it controls killing of animals. तो सब कुछ ये and flora and fauna पर holistic, what do you say, solution है। and मतलब with respect to the government is responsible for enforcement of this act, ensuring monitoring and protection of listed animals, and what we have is various schedules of animals and based on the schedules we have different level of protection, तो ये पता चाहिए। तो it's a comprehensive law under ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Next is if you see Wildlife Protection Act 2022 में what we had is certain amendments which we had, ठीक है। तो and these were according to, मतलब why we made this amendment was we have signed CITES convention, that is Convention on International Trade of Endangered Species and Flora and Fauna, तो उसको align करने के लिए we have amended our Wildlife Protection Act in 2022. Here what we have done is we have the central government is has to designate a management authority which would give permission for import and export of species. Secondly, with respect to management of invasive species, the central government have to regulate the trade. तो invasive species पर भी regulate करने के लिए central government has to make regulate trade, import, ये करना पड़ेगा। Establishment of conservation reserve, the government is empowered to declare area around the national park and protected areas as conservation reserve, तो ये भी central government को power दी गई है under this act. What we have done is simplification of schedules. Earlier 6 schedules थे, अब इसको 4 कर दिया है। तो schedule 1 has जो earlier schedule 1, 2 में थे animals, उसको schedule 1 में डाल दिया है। schedule 2 में जो already 2, 3, 4 में थे वो 2 में डाल दिया है। and schedule 1 has highest protection, schedule 2 has lesser protection. Then we have schedule 3 which has मतलब certain plants cannot be grown without without permission, तो ये हमने schedule 3 में डाला है। schedule हमारा जो old का schedule 4 था, हमारा जो old schedule 5 था was with respect to vermins, वो delete कर दिया है। vermin certain animals were allowed to be killed, तो वो अभी delete कर दिया है। and schedule 4 introduce किया है जो ऊपर कहीं भी protected नहीं है and those are protected under CITES, इसको हमने इसमें डाल दिया है schedule 4 के अंदर। तो ये एक important changes हमने लाया है हमारे Wildlife Protection Act में under schedule। तो 1 and 2 तो जो ओरिजिनली पहले 4 थे उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया है। हमारा जो पुराना 5 था उसको 3 कर दिया है, पुराना 6 था उसको 3 कर दिया है, 5 को डिलीट कर दिया है एंड 6th में जो ऑलरेडी जो स्पीशीज कवर्ड नहीं है कहीं, ये है, ठीक है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग, द अमेंडमेंट सेड दैट the sanctuaries would be managed by Chief Wildlife Warden. Chief Wildlife Warden is appointed by state government. It is a authority, statutory authority under Wildlife Protection Act, and they would be managing the all sanctuaries. ठीक है।
ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो आपको मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे इंक्लूजन ऑफ लोकल कम्युनिटीज व्हाइल फॉर्मिंग प्लान, सेंचुरी मैनेजमेंट प्लान हो गया, स्टेट्स आर ग्रांटेड द अथॉरिटी टू डेजिग्नेट एरियाज नियर नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्ट सेंचुरीज एज कंजर्वेशन रिजर्व, वी हैव इंक्रीज पेनल्टीज फॉर वायलेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो गए हैं। नेक्स्ट इज सर्टेन स्टैट्यूटरी बॉडीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखते हैं तो कौन से बॉडी, ठीक है, कौन से बॉडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन से बॉडी, जैसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हो गया, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हमने ऑलरेडी लिया है, ये न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर, ये सारे अंडर दिस एक्ट एस्टैब्लिश हुए हैं। इसका हेड इज प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज एन अपेक्स बॉडी विच गिव्स परमिशन फॉर एनी प्रोजेक्ट्स विच इज अंडर प्रोटेक्टेड एरिया। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है उसको रिव्यू करना है, उसका परमिशन देना है, दैट इज नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट सेट्स द पॉलिसीज for wildlife conservation in India. तो एक important है. Then we have Wildlife Crime Control Bureau, which is headquartered in New Delhi. So this is not New Delhi. I'll change this. This is not New Delhi. So I'll let you know about the exact location in the comment section. ठीक है, ठीक है. यहाँ Directorate of इसको it is chaired by Directorate of Wildlife Preservation, which is again an important body under Wildlife Protection Act. And जो wildlife crimes control करने के लिए we have this Wildlife Crime Control Bureau. National Zoo Authority भी है, which is in New Delhi, which is head, it is chaired by Minister of Environment and Forest, and zoo management and conservation related ये activities लेते हैं, policies set करते हैं, standard set करते हैं. State Wildlife Board मतलब अलग अलग स्टेट्स में है, इसमें हेड इज चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट लेवल कंजर्वेशन यहाँ एक्शंस लिए जाते हैं. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज एंड अगेन इट इज हेडेड बाय MOEF, हेड करता है, न्यू दिल्ली में है एंड सुपरवाइजेस द टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर एंड कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स. तो एक इंपॉर्टेंट है. अथॉरिटीज, एज आई हैव टोल्ड यू, अथॉरिटीज कौन सी, ये बॉडीज हो गया. अथॉरिटीज में वी हैव डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विच इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड वाइल्ड लाइफ वार्डन एट द स्टेट गवर्नमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट. तो ये तीन अथॉरिटीज हैव बीन सेटअप अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इस तरीके से पहले पूछा गया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कौन से एक्ट के अंडर हुआ है, तो ये अथॉरिटीज हैव बीन सेटअप अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो इंपॉर्टेंट है. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बट एस्टैब्लिश अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड दीज आर हेड ऑफ वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट एंड एक इंपॉर्टेंट है एंड दीज आर मेंबर्स ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, उसके भी मेंबर्स होते हैं ये. एंड इसका फंक्शन क्या है, they have an excessive control, administrative control over protected areas. So protected areas पर control. If there is any animal which has gone into public areas, उसको मारने की permission is also given by chief wildlife warden. And with respect to entrance of any person into wildlife sanctuary, national park हो गया, in core area, उसका भी permission chief wildlife warden देगा. Killing of any animal, scheduled animal का, that is also given by state chief wildlife warden. Advisory role to the state government is given by chief wildlife warden. So chief wildlife warden is the main authority who manages the protected areas in the state, appointed by the state but under wildlife protection act. तो ये कुछ important facts आपको पता चाहिए. Again I am telling you कि we have nothing related to Elvish Yadav or anyone. It's just that our concern is to take it on a lighter note कि हमने बोला है कि what we have is we have to study this important topics because of Elvish Yadav. So what we have done is we have studied about snakes, we have studied about snake venom, we have studied about what do you say, various snakes such as हमने king cobra देखा, हमने pythons देखे, हमने रैट स्नेक देखा. तो ये सारे रेड सैंड बोआ देखा. रेड सैंड बोआ हमने प्रीवियसली भी कवर किया था. वी हैव आल्सो लुक्ड इनटू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड उसके अमेंडमेंट, कैसे चेंजेस हुए हैं शेड्यूल्स में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को हमने सेंचुरीज का मैनेजमेंट का अथॉरिटी दिया है. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या है, कौन से बॉडीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुए हैं. तो ये सारी चीजें हमने दी हैं. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर आई विल टेल यू इन द कमेंट सेक्शन. आई थिंक सो. इज इट New Delhi? Is it New Delhi? Wildlife Crime Control Bureau? Does anyone know? Can anyone tell me Wildlife Crime Control Bureau का headquarter क्या है? Where is the headquarter of Wildlife Crime Control Bureau?
चलेगा. आई विल शेयर दिस PDF ऑन आवर वेबसाइट, मतलब ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. ठीक है, ठीक है, ठीक है. इट इज न्यू दिल्ली. ठीक है, न्यू दिल्ली ही है. आई थिंक सो. देयर इज कंफ्यूजन. बल्लभगढ़ में क्या है, so that I have to say. ठीक है, न्यू दिल्ली है. ठीक है, चलेगा, चलेगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Hope you get important inputs from this session and there is nothing against anyone. Again, I am trying to convey. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूंगा. टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं वेबसाइट पर, लेकिन वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे. थैंक यू.